Hello friends, welcome to our channel English Phobia. Let me introduce the topic which we are going to study today. So we are going to study the phrases, the English phrases. So you know very well that how important is this, because everyone use the phrases in their sentences, and if you don't know the meaning of that, then you will feel shame, right? You will feel the hesitation while talking with other peoples. So now stop all those things, because today we have brought a very nice video for you in which you will learn so many phrases, and also I hope that you will use the phrases in your sentences in your daily life. Okay, by this you will be able to speak a nice English, because you are doing practice. So apart from this, I should tell that learning a language is not a very hard thing. So first of all, remember this simple line that learning a language is not a hard thing, and the language is English. So English is just a language, and you can learn it by your practice. And also some important things are there which should be learned by you. Okay, so it doesn't matter that are you whether you are a beginner or whether you are an advanced learner, but you should learn the vocabulary, phrases and common sentences for starting. Okay, only in this beginning you will have to learn the common sentences, but apart from this, phrases and vocabulary are important, and you will have to learn the phrases and vocabulary throughout your learning journey. So don't stop learning this, because there are infinite vocabulary in English, and not only in English, there are infinite vocabulary words in any language. So vocabulary and phrases are very important, as I have said before. And now without wasting time, let's start today's video. And the phrases which we are going to learn today is in front of you. Okay, so in order to, end up, speak ill of, as a result, at all, to, pretend, about to, turn into, figure out, used to, for a while, keep on, fall apart, go through, when it comes to. सो दीज फ्रेजेस आर वेरी इंटरेस्टिंग गाइज, प्लीज़ बिलीव मी। जैसे ही हम इन फ्रेजेस के मीनिंग को समझेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि सेंटेंस में इसे कैसे और कहाँ यूज़ करना है। एंड आई होप दैट यू विल यूज़ ऑल दीज फ्रेजेस इन योर सेंटेंसेज इन योर डेली लाइफ, क्योंकि गाइज़ ये इतने ही सिंपल और इतने कॉमन है कि आप इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यूज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन भी है। और हमारा पहला जो फ्रेज़ है उसका वो है इन ऑर्डर टू। इट हैज़ अ वेरी सिंपल मीनिंग, और इसका जो मीनिंग है वो होता है ये काम करने के लिए, यानी वो चीज़ बनने के लिए। तो अगर आप इसे सेंटेंस के साथ देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। लर्न वोकैबुलरी, यानी वोकैबुलरी को लर्न करो। इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, यानी इंग्लिश लर्न करने के लिए। तो ये काम करने के लिए, उसके लिए, इसके लिए हम इन ऑर्डर टू को यूज़ करते हैं। लर्न वोकैबुलरी इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, यानी इंग्लिश लर्न करने के लिए वोकैबुलरी को लर्न करें। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कंप्लीट योर होमवर्क, यानी अपने होमवर्क को कंप्लीट करो। इन ऑर्डर टू बिकम इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बनने के लिए, इंटेलिजेंट बनने के लिए अपना होमवर्क कंप्लीट करो। तो ये थे दोनों सेंटेंसेस जिसमें हमने इस फ्रेज़ को यूज़ किया। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर होगा, और अगर सच में क्लियर है, और मुझे कैसे पता चलेगा, ऑफ कोर्स आप कमेंट करेंगे तो कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया है या नहीं, और आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा इस फ्रेज़ को अपने एक सेंटेंस में यूज़ करके। इसमें आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और इससे मुझे भी पता चलेगा कि मेरे व्यूअर्स को समझ में आ रहा है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट फ्रेज़ है एंड अप। एंड अप का यूज़ आप तभी समझेंगे जब आप सेंटेंस को देखेंगे। तो आई एंडेड अप स्टडिंग बुक्स एट द एज ऑफ 18, यानी मैंने बुक्स पढ़ना 18 की एज से बंद कर दिया। यानी एंडेड अप का मीनिंग होता है स्पेशली ख़त्म करना। तो आप इस तरह इस फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस को भी देखेंगे ताकि हम इसका यूसेज क्लियरली समझ सकें। वी एंडेड अप ईटिंग अ सेम डिश, यानी एक ही डिश को हमने खाना बंद किया फॉर अ वीक, यानी वीक के बाद हमने उसे खाना बंद कर दिया, लेकिन पूरे वीक तक
हमने उस डिश को खाया है। तो इस सेंटेंस का मतलब ध्यान से समझेंगे। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज़ दैट we were eating the same dish for a week. Okay, so we have eaten the same dish throughout the week and now after the week हमने खाना बंद कर दिया है। We have ended up, तो हम लिख सकते हैं we ended up eating a same dish, यानी सेम डिश को खाना हमने वीक के बाद बंद किया है। चलिए नेक्स्ट फ्रेज़ को देखें। और हमारा नेक्स्ट फ्रेज़ है वर्थ इट। आई नो आपका इसका मीनिंग शायद क्लियर ना हो, बिकॉज ये जितना यूज़ होता है उससे कई ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। चलिए मैं आपको इसका मीनिंग क्लियर कर देती हूँ मेरे 3 बेस्ट सेंटेंस से। तो पहला वाला जो सेंटेंस है वो है इज़ दैट गर्ल वर्थ पार्टिसिपेटिंग। वर्थ का मीनिंग होता है लायक होना, और यहाँ पे क्या लिखा है इज़ दैट गर्ल वर्थ पार्टिसिपेटिंग। इसका मीनिंग है कि क्या वह लड़की भाग लेने लायक है, पार्टिसिपेट करने लायक है। इज़ दैट गर्ल वर्थ पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ दैट मॉर्निंग शो इज़ नॉट वर्थ वॉचिंग, यानी जो मॉर्निंग शो है वो देखने लायक नहीं है। द मॉर्निंग शो इज़ नॉट वर्थ वॉचिंग, यानी देखा जाए इस काबिल नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है यू शुड नॉट गो देयर, इट डजंट वर्थ इट। इसका मीनिंग है तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये उसके लायक नहीं है। इसका मीनिंग होता है कि उस जगह, वो जगह वहाँ पे जाने लायक नहीं है, तो तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और हमारा नेक्स्ट फ्रेज़ है स्पीक इल ऑफ, जिसका मीनिंग होता है बुरा बोलना, किसी चीज़ के बारे में या किसी के लिए बुरा बोलना। तो इसका सेंटेंस है डोंट इवन थिंक ऑफ स्पीकिंग इल ऑफ माई ब्रदर, यानी डोंट इवन थिंक यानी सोचना भी मत, ऑफ स्पीकिंग इल ऑफ माई ब्रदर यानी मेरे भाई के बारे में बुरा बोलने के सोचना भी मत। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज स्पीकिंग इल ऑफ माई कज़न, यानी वो मेरे कज़न के बारे में बुरा बोल रहा था। आइए नेक्स्ट फ्रेज़ देखें। एज अ रिज़ल्ट है हमारा नेक्स्ट फ्रेज़। इसका मीनिंग होता है इसके फलपूर्वक, यानी किसी चीज़ का रिज़ल्ट। तो हमारा सेंटेंस को देखते हैं। ही वॉज नॉट स्टडिंग वेल, एज अ रिज़ल्ट ही गॉट फेल, यानी वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा था। एज अ रिज़ल्ट यानी इसके फलस्वरूप वो फेल हो गया। इसका रिज़ल्ट क्या आया कि वो फेल हो गया। ही टॉन्टेड मी, उसने मुझे ताना मारा। एंड एज अ रिज़ल्ट आई लेफ्ट हाउस, और इसके फलस्वरूप मैंने घर छोड़ दिया, यानी उसके ऐसा करने की वजह से एज अ रिज़ल्ट मैंने घर छोड़ दिया। और हमारा नेक्स्ट फ्रेज़ है एट ऑल। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इसका मीनिंग होता है बिल्कुल। सेंटेंस देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शी हैज़ नो पेशेंस एट ऑल, इसका मीनिंग होता है उसे बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। आई विल नॉट गो टू द पार्टी एट ऑल, इसका मीनिंग है कि मैं पार्टी बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आई विल नॉट गो टू द पार्टी एट ऑल, यानी मैं पार्टी बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आइए नेक्स्ट फ्रेज़ देखते हैं। टू प्रिटेंड का मीनिंग होता है दिखावा करना, ये दिखाना। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। डोंट ट्राई टू प्रिटेंड दैट यू आर स्मार्ट, यानी डोंट ट्राई टू प्रिटेंड मतलब दिखावा करने की कोशिश मत करो कि तुम स्मार्ट हो, दैट यू आर स्मार्ट। नेक्स्ट है ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही केयर्स अबाउट मी। ही वॉज प्रिटेंडिंग यानी वो दिखावा कर रहा था दैट वो मेरी फ़िक्र करता है, ही केयर्स अबाउट मी। नेक्स्ट फ्रेज़ देखते हैं। और हमारा नेक्स्ट फ्रेज़ है अबाउट टू। अबाउट टू का मीनिंग होता है होना, यानी करने वाला होना। जैसे कि आप कह सकते हैं आई वॉज अबाउट टू फॉल, यानी मैं गिरने वाली थी। या फिर दिस वर्क वॉज अबाउट टू बी कम्प्लीटेड, यानी काम कंप्लीट होने वाला था। तो किसी चीज़ जो होने वाला है या करने वाला है हम अबाउट टू यूज़ करते हैं। बट गाइस सेंटेंस देखते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। रोहन वॉज अबाउट टू गो टू द लाइब्रेरी, यानी रोहन लाइब्रेरी जाने वाला था। रोहन वॉज गोइंग टू द लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं, लेकिन अबाउट टू गो यानी वो जाने ही वाला था। नेक्स्ट है आई वॉज अबाउट टू कम्प्लीट दिस वर्क। आई वॉज अबाउट टू कम्प्लीट यानी मैं करने वाली थी कंप्लीट क्या, वर्क को। चलिए नेक्स्ट फ्रेज है टर्न इनटू। टर्न इनटू का मीनिंग होता है किसी चीज़ में बदल देना या उसको पलट देना। तो टर्न इनटू का मीनिंग बहुत ही सिंपल है गाइस। सेंटेंस देखते हैं। यू हैव टर्न्ड हिम इनटू दिस। यू हैव टर्न्ड यानी तुमने बदल दिया है किसको, हिम, यानी यू हैव टर्न्ड हिम इनटू दिस यानी तुमने उसे इस चीज़ में बदल दिया है, यानी वो पहले कुछ और था अब इसमें बदल दिया। नेक्स्ट है आई टर्न्ड दिस ओल्ड बुक इनटू अ न्यू वन। आई टर्न यानी मैंने बदला है इस ओल्ड बुक को इनटू अ न्यू वन, इस पुरानी बुक को मैंने नया वाला बना दिया है। ये फ्रेज़ बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन है, आप इस अपने सेंटेंस में इस तरह ज़रूर यूज़ करें।
हमारा नेक्स्ट फ्रेज़ है। और गाइस आज के सेशन में हमने इतने ही फ्रेजेस पढ़ लिए, बहुत है। आपको इसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है, प्रैक्टिस करना है। और जो हमने एक्स्ट्रा फ्रेजेस हमने दिखाई थी स्टार्टिंग में, अगर आपको वो फ्रेजेस सीखना है कि हम कैसे यूज़ करते हैं, तो आप जाके हमारा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पे है। आप हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि जो भी फ्रेजेस आज हमने सीखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसी की तरह जो बाकी फ्रेजेस आज के वीडियो में रह गए हैं उसे हमने दूसरे वीडियो में कवर किया है, तो आप उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देखें, क्योंकि वो फ्रेजेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जाइए और जाकर देखिए।